Just wait for one more minute. Let students join. Meanwhile, tell me how are you? How are you feeling? What kind of subjects and books you are preferring? Yes, anybody. Have you taken the book? Is there anybody who has purchased Andy Kapoor or any book whichever I suggested? Yes. So I believe there is no such good pressure on you in terms of subjects or books. Yes. Anything you wanted to say, any concern? All the subjects are basically as per the industry driven syllabus, right? So we make sure that whenever we are teaching you, you must be able to understand and speak up whenever there is any kind of interview for the training, for the placement, right? Internship is very, very important for the curriculum. So we provide internship every semester. Had it been the normal classes, it would have been the same way that we are doing it here. We are putting up 100, more than 100% efforts to ensure that whatever we are teaching, you are understanding and you are there up to the class, right? Any concern or anything you wanted to say or any kind of feedback regarding my subject? Yes, please. Are you understanding what I am teaching? What exactly I am trying to convey? Somebody please Yes, reply. ma'am. Okay. So all of you know that Good section. morning, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good, good. So section 10 provisions are clear to you? Yes? Yes, ma'am. Okay, okay. Now tell me if am I wrong or right in saying this? All contracts are agreements, but all agreements are not contracts. Is it correct statement? Do you agree? Yes, ma'am. I repeat Yes, once ma'am. again. Okay, okay. So can anybody give the explanation how contracts are based on agreements, but all agreements are not contract? Yes. Any? मैम कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली जो रिटर्न होते हैं, एग्रीमेंट तो हो गया जो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि हाँ मैं आपको वो प्रॉमिस करती हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि जो रिटर्न है उसमें ऑब्लिगेशंस भी लग सकते हैं, उसमें रूल्स एंड और वो रेगुलेशंस भी होते हैं। इन्फोर्सिएबल होता है। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उनका हाँ, बेस क्या वो होगा? इन्फोर्सेबल हाँ, होते उनका हैं। बेस एग्रीमेंट ही होगा। आपने एग्रीमेंट बनाया दूसरी पार्टी के साथ, टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी, दूसरी पार्टी इज नॉट इन ए कैपेसिटी, एग्रीमेंट अभी कोर्ट में पहुंचा ही नहीं था, इन्फोर्सेबल किया ही नहीं था, आपने उसको एफिडेविट में नहीं लिखा, सिंपल एक एग्रीमेंट लिखा है। तो एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट बने ही बने, बट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा जरूरी होगा कि उसका बेस एग्रीमेंट होगा ही होगा। That means when we talk about agreement and contract, agreement is just offer and acceptance. I offer you and you accept it. This is the agreement. When the agreement is added with the enforceability, it becomes contract. So no contract can be made without agreement, right? But every agreement will be a contract. It is not true. It is not sure. इट डिपेंड्स अपॉन द पार्टीज। ऑफर दिया, एक्सेप्ट किया, आपने उसको एग्रीमेंट लिख लिया, दूसरे दिन पार्टी कहती है मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, कर सकती है। मान लीजिए लैंड का है, जब आपने कोई लैंड किसी से परचेज करनी है, अनटिल रजिस्ट्री नहीं होती तब तक आप ये नहीं मान सकते कि लैंड इज योर्स। तो आपको एक पार्टी बोल रही है कि मेरे पास इतनी लैंड पड़ी है, मैं आपको ये सेल करूंगी, you accept it, right? So normally it is like मैं आपको 15 सितंबर को सेल करूंगी, तो आज 1 सितंबर को कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एग्रीमेंट बन गया। प्लीज अंडरस्टैंड, एग्रीमेंट बन गया। बट नाउ व्हेन द क्वेश्चन इज दिस एग्रीमेंट ए कॉन्ट्रैक्ट? नेक्स्ट डे या बिफोर 15 उसने अपना एग्रीमेंट रिवोक कर लिया, रेवोकेशन इज पॉसिबल। No, I don't want to sell. Now what would happen? This will be agreement but not a contract. So all agreements will not convert into contract. This is 100% correct statement. But every contract will be an agreement first, and this is also 100% correct statement.
right बच्चे? Okay, now moving forward, please be ensured that this time I have not circulated Google form to you. I got to know that there are students who are regular and there are students who are executive. So, bache, everybody's name is coming. I have created IMCRP test because ultimately this is the automatic system. If I'm putting up something as a manual, that will not be considered for the last attendance, which is to be taken as 75%. आई बिलीव आई एम क्लियर. अगर किसी बच्चे का एक बच्चे का इशू आता है या दो का आता है, उनका हम एडजस्ट करा सकते हैं. मैं सबकी मैनुअल अटेंडेंस लगा रही हूँ, तो दैट इज समवेयर you guys will be in a problem, right? So IMCRP is not linked with the Google Class forms, right? So today I have created your test on IMCRP. In case, in a special case, if student faces the problem that questions are not coming, you're not able to mark, you're not able to submit, just let me know personally. You send me a message, I'll definitely consider that as an attendance, because meanwhile I always take your attendance by doing the print screen. Okay bache? So Soma will also be able to appear for the test because I have given her separate code for the test. Anything you wanted to say on to this? No, ma'am. Okay. So you will be able to do your test. It is open for 1 hour. My class would end at 10, 10, 10, 15. So you have enough time to complete your test by 11:10, right? So complete it. There are 5 sets of questions. You have to choose the right one and accordingly you have to do it. Okay, bache? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. Let's get started now. So we have discussed offer. Please understand, when I say offer, offer means the most important thing, where one party is proposing something, to do something or not to do something, right? And most important is willfully obtaining the assent. Are you agreeing on it or not? So offer includes three things. Number one is parties. Minimum two parties are required, right? Second is to do a particular task or not to do a particular task. Both are part of offer. And very, very important, willfully acceptance what another party wants it. So obtaining his assent, obtaining his consent. तो दो पार्टीज ने, एक पार्टी ने कुछ प्रपोज किया, पहला इंग्रेडिएंट हो गया, दूसरा कुछ करने को या ना कुछ करने को, वो भी ऑफर का पार्ट है, और तीसरा उसकी राय लेनी है, उसकी विलफुली उसको पूछना है कि क्या तुम ये करोगे, राइट? क्या तुम ये मानोगे? So will you accept this proposal is a part of offer. Very, very important line I am saying. Willfully taking the consent of the party. जिसको ऑफर किया गया है, जिसको प्रपोजल किया गया है. So offer includes three things. Let me repeat once again. When we talk about offer, it is between two parties. One is making the offer, another has to accept or not to accept. Please understand, two parties. Second is for what? So it is between two parties. किस लिए? For doing some task, for doing some assignment, or not doing something. अगर आज नोकिया कहता है एंड्रॉइड को कि मैं अपना स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा हूं, आपको अब अपनी सॉफ्टवेयर किसी को नहीं देनी है, सिर्फ मुझे देनी है, ऑफर कर दी, एंड्रॉइड विलफुली एक्सेप्ट करता है, तो दिस इज ऑफर. ऑफर में तीनों चीजें होनी जरूरी है. टू पार्टीज, नंबर वन, doing something or not doing something, performing something or not performing something. Number two, and very, very important, in order to obtain his consent, the party, front party consent, assent या राय, या उसकी उसको पूछना कि तुम मानोगे, will you act like this as I proposed or not. So this is nothing but the proposal making or offer. So offer is nothing but a way of making a proposal
to know the consent of another person. Is it clear, बच्चे? Yes, ma'am. Okay. What Yes, are the, okay, great, great. What are the types of offer? Different types of offer are there who has a specific meaning. Number one, express. Any offer made by two parties in such a manner, one is proposing something in writing or in verbal. So offer may be that I have a glass of water. Will you take it? Offer, right? So any person is making the offer or a proposal either in writing or in verbal. Remember, express contracts are based on express offer. But written contracts, जितने भी writing वाले होंगे, this portion is always there in the form of challengeable contract. Verbal contracts cannot be sued, cannot be challenged. These contracts can't be sued. That means you cannot claim anything if this is a invalid contract. You cannot claim anything. आप नहीं कर सकते हो because they are oral. And what is the case? When the court has the proof, court always take in the writing way. So offer is given to another person either in writing or in oral. These oral contracts are created out of, somebody please reply, कल बताया था oral contracts जितने भी होते हैं, yes, somebody please reply. Yes, somebody please reply. Oral contracts are based on fiduciary relationship. FIDUCIARY. fiduciary का मतलब कौन बताएगा? सुष्मिता, प्लीज लेट मी नो द मीनिंग ऑफ fiduciary. Somebody please reply. Nisha, are you all able to hear me? Somebody please reply. Yes, ma'am. Okay. So, I believe am I audible? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. okay. So tell me, what is fiduciary? Anybody? Sushmita, are you there in the class, बच्चे? Yes, ma'am. तो fiduciary क्या होता है? fiduciary का मतलब क्या है? FIDUCIARY. योगेश? नहीं पता। ओके, योगेश, मैम जो एक सेकेंड. योगेश, प्लीज रिप्लाई. व्हाट इज fiduciary? पीवीसी मीन जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एग्रीमेंट करवाता है शायद. तो fiduciary का मतलब क्या हुआ? एक स्पेसिफिक मीनिंग था जो मैंने कल करवाया था. मिताक्षी, यू टेल बेटे. मैम जो ऑफर करता है, जो ट्रस्ट के ऊपर ऑफर करता है, वो फिड्यूशियरी होता है. लाइक बिल्कुल. आज अगर फादर कह रहा है कि बेटा मैं आपको 2000 पॉकेट मनी दूंगा, राइट, किसी मंथ में नहीं दे पाया या कम कर दिया या इस बार कहा कि 800 ले लो, दैट इज नॉट द कॉन्ट्रैक्ट टू बी चैलेंज्ड. एक तो क्यों? क्योंकि फादर सन रिलेशनशिप इज fiduciary. fiduciary is a legal term. Any contract, any offer, any acceptance which is based on love, faith, care, affection, trust, ये जितने भी मैं इमोशनल वर्ड्स बोल रही हूं जो कि हम अपने फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ यूज करते हैं, फ्रेंड्स के साथ ऑफनली यूज करते हैं, तो दोज कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स. आई रिपीट वंस अगेन, any contract, any offer, any acceptance
based on fiduciary relationship is called oral one, verbal. तो आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, मेरे फादर ने मुझे 2000 बोला था, इस मंथ 800 दे दिया है. नो, you have to accept it. That's it. Okay papa. So those contracts are not challengeable. Please understand. आज अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ या एक फादर अपनी डॉटर को कुछ गिफ्ट दे रहा है, so those are out of love, affection. So please understand, when I use this term fiduciary, yes, I repeat once again, if I use this term fiduciary, Fiduciary, yes. Fiduciary relationships are relationship of trust, faith, love, care, affection. I repeat once again, any contract which is oral cannot be sued. Why? Because they are dependent upon fiduciary. So fiduciary is any verbal agreement, any lovable contract whereby one is offering something to another, that is just the trust, right? So son cannot have a challenging right. My father has promised me to give 2000 rupees every month as a pocket money. Now they are giving 800 or 1000 whatsoever, because that is fiduciary, right? Clear? There was one case, Balfour versus Balfour. That case I would be discussing here. Let me tell you, क्योंकि आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं. ये बाल्फर वर्सेस मिसिस बाल्फर था कि वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर केस कर दिया था. ये बाल्फर वाज ए पर्सन हु यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट. ये सेल्समैन टाइप जॉब था इसका, तो ही यूज्ड टू हैव ट्रैवलिंग अ लॉट. तो वो अपनी वाइफ को खर्चा देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, 6 महीने का मेरा ये प्रोजेक्ट है, उसके बाद मैं घर आऊंगा, मैं पैसे हर महीने भेजता रहूंगा. इट वॉज वेरी नॉर्मल टॉक. 2 महीने उसने भेजे, थर्ड मंथ में उसने नहीं भेज पाया, तो मिसिस बाल्फेयर हैज गॉन टू द कोर्ट. तो कोर्ट हैज सेड नो, these contracts are based on fiduciary, your husband wife, so this may be managed within the four walls of the home. Those contracts are fiduciary in nature. Mrs. Balfour couldn't get any claim or damage कि उसने मुझे ये कहा था कि compensation देगा ही देगा, unless and until they are husband wife. This is fiduciary. If they move towards the separation or divorce, then the relationship is not fiduciary. तो fiduciary word is very very important. It is phenomenal. तो कोई भी, चाहे आप ऑफर की बात करो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट की बात करो, जहां पे ये ओरल कॉन्ट्रैक्ट आएगा वहां ये वर्ड आएगा, दैट इज fiduciary. Fiduciary means anything which is based on love, care, trust, affection, faith, right? Yes बच्चे, any doubt to anyone? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, great. Let me just take your attendance one more time. The students are joining very late. Attendance is very must. You all should attend the classes. It is great beneficial. Anyways, moving towards next. Implied offer, like the implied contract, where nothing is in writing or oral, but the implied is that is regulated by law. Look at the metro contract. So they are not going to create a contract with XYZ because lakhs of people are traveling through metro. That contract is implied in nature. Implied means automatic. So any offer which is automatic is known as implied offer. So offer is given in such a manner that we are open, right? आज आप एक कैफे में जाते हो तो उन्होंने एक बोर्ड लगा दे रखा है कि we are open. This is offer to all. They can come and have a seat and can give the whatever they like it. So offer is given by the cafe that we are open. We are open is a implied offer. So whosoever will come will place the order, will pay for it, and accordingly it is a implied contract. So implied contract is automatic contract, बच्चे. So this word is very important. Automatic, right?
Yes. So automatic contracts are which are created by the law, which are legal in eyes of law. So they are very much legal in the eyes of law, but they are automatic. Remember, company is not going to make offer and again. So जितने भी आपके specific होते हैं they are expressed, जितने भी आपके general offers होते हैं they are known as implied. So visiting a cafe, visiting a museum, visiting a traveling by metro, traveling by bus, कंडक्टर हर एक के साथ जो है एक स्लिप आपको देता है कि आपकी टिकट है आपके पास, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं वो आपके साथ कि आपके साथ एक एग्रीमेंट है, उन्होंने एग्रीमेंट पकड़ रखा है, आप साइन कर रहे हो. नो, इट इज इम्प्लाइड. you have moved towards the bus, आप सीट ले ली है, it is implied you have to buy the ticket. So somewhere those contracts are very much automatic in nature. We know it, right? There is nothing every time it is coming into the law, it is registered. कंपनी रजिस्टर हो गई, उसके सारे के जो बाकी कॉन्ट्रैक्ट हैं विद द एम्प्लॉइज विद द कस्टमर इज ऑटोमेटिक इन नेचर. राइट बच्चे? तो आप माइनर से एग्जांपल लीजिए. यू आर परचेजिंग वन शैम्पू और सोप, डव का आपने सोप लिया, राइट? You and company, right, have a contract. How? Let me tell you. Company called Dove is a product of HUL. तो हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रही है. तो ऑफर क्या है? प्रोडक्ट. आपने क्या किया? एक्सेप्ट. आपने किया? पे किया. आप कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में हो, बट वो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इम्प्लाइड. तभी कंपनी आपको कहती है कि इफ इन केस एनी कंसर्न इज देयर जस्ट राइट टू अस. वो राइटिंग टू अस का मतलब है आप अपनी फीडबैक वो ले रहे हैं. So there are certainty of the contract, but those contracts are implied in nature, automatic in nature, right? Third is specific offer. When the offer is given only to a specific person, that offer is called specific offer. That means that offer is made by the Reliance to the future group, that is specific. एक्सक्लूडिंग Amazon राइट, स्पेसिफिक, कि हमें Amazon के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना. अभी टेक द एग्जांपल ऑफ रीसेंट डील. रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के शेयर खरीद के उसके सेगमेंट में आ रही है. कौन से सेगमेंट में? जितना भी आपका फैब इंडिया है, जितना भी आपका बिग बाजार का शेयर है, उसमें अब उसका स्टेक होगा. बट उसने स्पेसिफिक ऑफर क्या किया कि आपका आपने Amazon का भी आपके पास है, Amazon को हम अपने ऑफर में इंक्लूड नहीं करेंगे. यानी कि बिल्कुल स्पेसिफिक कर दिया रिलायंस ने कि दिस ऑफर इज विद द फ्यूचर ग्रुप एक्सक्लूडिंग द Amazon. सो इट इज वेरी मच स्पेसिफिक इन नेचर कि जो Amazon ने प्रोडक्ट्स आपके बिग बाजार का अपने शोकेस किया हुआ है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे. हम वो वाला हिस्सा लेंगे जितना Amazon का हिस्सा नहीं है. तो Amazon का हिस्सा हटा के जो हिस्सा बचा है उसमें से कितना वो लेंगे. देयर इज अ टाई अप नाउ between the Reliance Group and the Future Group. क्यों? क्योंकि Reliance now wants to come into e-commerce websites, that means grocery, garments. Now they wanted to enter into this, right? So the whole thing is specific offer. So Reliance has offered to the Future Group, it is known as specific offer. General offer to the masses. When the offer is made to masses, it is called general offer. प्लीज अंडरस्टैंड. पब्लिक एट लार्ज, कोई भी आ सकता है, किसी को भी ऑफर किसी के लिए भी वैलिड है, राइट? So offer is made not to a person, not to a particular company, but to the masses, but to the public at large. जब आपने ऐसी ऑफर दी जिसमें काफी लोग शामिल हैं तो वो जनरल ऑफर हो गई. जब आपने स्पेसिफिक किसी एक पर्सन या किसी एक कंपनी को ऑफर ही दी है, बाकियों के लिए वो नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर. जस्ट टेक द एग्जांपल, कंपनी कई बार जो है कुछ ऑफर ऐसे रखती है विच इज वेरी स्पेसिफिक इन नेचर. वो कहते हैं कि अगर आपने हमारे यहाँ से 5,000 से ऊपर की शॉपिंग की, जस्ट ए मिनट, ओके, आपने अगर हमारे यहाँ से 5,000 की शॉपिंग की तो हम आपको ये परसेंटेज डिस्काउंट देंगे. अब स्पेसिफिक हो गया, जो करेगा वही ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है. जिसने 2,000 की है, 4,000 की है, उसके लिए वो ऑफर नहीं है. सो स्पेसिफिक ऑफर का मतलब है कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी बना दी कंपनी ने कि ये ऑफर उन लोगों के लिए है, स्टार मार्क करके,
जिन्होंने ये किया है, राइट? तो स्पेसिफिक ऑफर इज मेड बाय द कंपनी टू a specific class, specific company, specific person और group of persons, राइट? कई बार बच्चे स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज कि मैम क्या स्पेसिफिक ऑफर सिर्फ एक पर्सन को है? नो, नॉट नेसेसरीली। स्पेसिफिक ऑफर का मतलब है एक कंडीशन लगा दी, एक स्पेसिफिक क्लास क्रिएट कर दी कि सबके लिए नहीं है, ये वाले लोगों के लिए है, एक्सक्लूसिव, राइट? क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर मीन्स both are offering something, that means it is kind of a barter system. You must have heard this word barter. Barter system means you take up my rice, I'll take up your flour. You take up my bottle, give me your tiffin. So barter का मतलब exchange of goods for the goods. Similarly, cross offer का मतलब offer for a offer. ओके फाइन, आज आप ऐसे करिए कि आई हैव ए मोबाइल फोन एंड यू हैव ए मोबाइल फोन, लेट्स एक्सचेंज ईच अदर। तो ऑफर इज मेड टू एक्सचेंज द मोबाइल फोन विद अदर मोबाइल फोन। जैसे मेरे पास एप्पल 6s है, आपके पास ओप्पो का है, तो आपने कहा कि मुझे एप्पल दे दो और मेरा ओप्पो ले लो। तो दिस इज क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर मीन्स some kind of identical offers are made by the parties and they are ignored कि दूसरे ने किया है क्या किया है। they are not related to the money value, they are just offering it. तो अगर दोनों पर्सन सेम तरह की ऑफर एक दूसरे को कर रहे हैं, दैट ऑफर इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। ओके, काउंटर ऑफर, काउंटर ऑफर मीन्स एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, चेंज इन ऑफर। आपने जिसको ऑफर दिया, जिसको प्रपोज किया है आपने, वो अगर कुछ थोड़ा सा चेंज चाह रहा है, चेंज करने के बाद आप दोबारा उसको ऑफर करते हो, दैट ऑफर इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। तो ओरिजिनली ऐसा था कि आई एम ऑफरिंग यू टू सेल माई व्हाइट कार। ओके, जब आपने ऑफर किया तो वो कह रहा है कि मेरे को कार तो लेनी है बट नॉट विद द व्हाइट, आप ऐसे करो इसमें ना मुझे कलर करा के दो, व्हाइट इज नॉट लकी फॉर मी, आई विल बाय दिस कार बट कलर इज नॉट प्रेफरिंग। फिर उसने बोला कि मेरे को ब्लैक कलर करा दो बिकॉज ब्लैक इज सूटिंग टू मी। थोड़ा सा भी चेंज अगर ऑफर में आया, ओरिजिनल ऑफर में हल्का सा भी चेंज आया और फिर दोबारा से वो ऑफर किया उसको, दैट ऑफर इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर को हम मॉडिफाइड ऑफर भी बोलते हैं। तो एनी चेंज विच द एक्सेप्टर इज सेइंग you make it and then you offer it, that is known as counter offer. Just giving you the example once again. A is offering to sell his white car to B. B says, I want your car, but color is not good for me. Color is something that my astrologer has said to avoid white car because every time I met with an accident. Do it in a black way, I'll accept it. Now understand, A is taking the offer back, making the color as black, and then offering again. That is known as counter offer. Yes, beta. Last is standing offer. Any offer which is there for a certain period of time. Very, very important. Offer is made and given the time. You have a week time. You reply me whether you want my offer or not. वीक टाइम का मतलब है एक हफ्ते के बाद आपको रिप्लाई देना पड़ेगा कि यस आई एम एक्सेप्टिंग और आई एम नॉट एक्सेप्टिंग। तो जब एक ऑफर टाइम लिमिट के, टाइम बाध्य में दे दिया, समय बाध्य कर दिया, समय बाध्य का मतलब है कि 1 महीने तक आपके पास टाइम है, सोच कर बता दीजिएगा कि आपको मेरी कंपनी के साथ डील करनी है या नहीं करनी है, तो वो 1 महीने तक वो ऑफर वैलिड रहेगी। बट जैसे ही 1 महीना खत्म हुआ, ऑफर स्टैंड्स नल एंड वॉइड, फिर वो मानी नहीं जाएगी, राइट? तो एक कोई भी ऐसी ऑफर जो टाइम टैग के साथ आती है, टाइम लिमिट के साथ आती है, दैट ऑफर इज नोन एज स्टैंडिंग ऑफर। यस बच्चे, एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एनी ऑफर विच इज नॉट क्लियर? यस प्लीज आस्क। Okay, great. You all please join class on time. Soma, let me tell you what I have briefed regarding IMCRP test, bache. That today Yes, I have scheduled a test on IMCRP, right?
Test must be visible on your IMCRP now. I have given you access right. In case, in a special case, if you face any problem, just message me personally. I Okay. look into your matter. Huh? IMCRP is a automatic attendance recorder. Whatever I do, मैनुअली अगर मैंने 2 की हैं तो लास्ट में मुझे आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेके वो डालनी ही पड़ेंगी अटेंडेंस. ऑटोमेटिक अटेंडेंस रिकॉर्डर है जो हम मैनुअली फीड करते हैं. दैट इज नॉट कंसिडर्ड इन IMCRP. नंबर 1. तो यू प्लीज सी, आप एक बार IMCRP लॉग इन करिए, देखिए कि आपको मेरा टेस्ट विजिबल है या नहीं है. अलग कोड है आप बच्चों का, राइट. अभी आपका नाम एग्जीक्यूटिव में आ रहा है, तो अभी आप उसके अकॉर्डिंगली देखिए, चेक करिए. नहीं आता है तो मुझे बताइएगा. आई विल डेफिनेटली टेक योर अटेंडेंस. ओके बेटा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चे? Yes, ma'am. Okay, okay, okay. So please make sure that you attempt your test. Your IMCRP test is different. तो एक बार आप प्लीज चेक करके मुझे बताइएगा. Okay. Now tell me if any doubt is there on to any offer. योगेश, am I clear बच्चे? समझ आया आपको आज? Yes, योगेश. यस मैम. ऑफर समझ आ गया? हाँ मैम. काउंटर ऑफर क्या होता है बेटा? काउंटर ऑफर. यस योगेश, व्हाट इज काउंटर ऑफर बेटा? मैम जब हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं अपने एग्रीमेंट में या फिर कॉन्ट्रैक्ट में, ऑफर वर्ड है ना, तो ऑफर बोलना है. yes, ओरिजिनल offer ऑफर में हम कुछ भी चेंज करते हैं तो मोडिफाइड ऑफर इज नोन एज काउंटर ऑफर. ये ऐसे भी बोल सकते हो. अगर एक लाइन में मैं सबको समझाऊं, एक्सप्रेस ऑफर इज द ऑफर मेड आइदर इन राइटिंग और इन वर्बल. ठीक है, कोई भी ऑफर. इम्प्लाइड ऑफर, मैम इम्प्लाइड होता है जो ऑटोमेटिक होता है. हमारा मतलब कुछ जैसे कि हम डव शैम्पू लेते हैं तो वो कुछ मतलब हमारे साथ उसका ऑटोमेटिक ऑफर हो चुका है. ऑटोमेटिक ऑफर और एक्सेप्टेंस हो चुका है. बिल्कुल बिल्कुल. स्पेसिफिक ऑफर, मैम कुछ मैम जो पर्सन किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए ही होता है. हाँ स्पेसिफिक, कोई एक कंडीशन लगा दी जिससे वो स्पेसिफिक बन गया. जनरल ऑफर, मैम जनरल में हम जैसे कि कुछ मतलब सबके लिए इक्वल हो, जैसे कि डिस्काउंट अगर हम किसी प्रोडक्ट पे दे रहे हैं तो वो ऑल ओवर सबके लिए ही होगा. सबके लिए वैलिड होगा, सबके लिए. ओके योगेश, क्रॉस ऑफर बताओ बेटा. व्हाट इज क्रॉस ऑफर? योगेश, somebody else. दीपक आप बताओ बच्चे. Crossover is based on barter system, and just I give an example. I give you a mobile, and you give me exchange your mobile to me. बिल्कुल. So cross offer look like this. Both are offering each other, right? Both offer for offer. यानी कि क्रॉस ऑफर को अगर एक वर्ड में बोलना है तो ऑफर फॉर ऑफर. इट इज लाइक ए क्रॉस ऑफर. इट लुक लाइक ए एक्स, राइट. एक ए ने बी को किया ऑफर और बी ने ए को किया सेम तरह का ऑफर, सेम तरह का. उनको नहीं पता था कि ए मुझे करेगा, तो ए ने बी को ऑफर कर दिया, बी ने ए को ऑफर कर दिया. दिस इज क्रॉस ऑफर. ओके. स्टैंडिंग ऑफर. दीपक, स्टैंडिंग ऑफर बचे. यस. Ma'am, standing offer is valid for a certain period of time. Just It comes with a time limit. Very important. So time limit offer is known as standing offer, जिसमें ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट है. आप मानते हो इट इज फाइन. जैसे ही क्लोजिंग डेट आ गई, ऑफर उसके नेक्स्ट डे वैलिड नहीं रहेगा. क्लियर बेटा? यस. यस मैम. ओके. यस मैम. What are the legal rules for offer? Number 1 is very important. It must be having an intention to create a legal relationship. बालफोर वर्सेस बालफोर की तरह नहीं कि वो बेचारा गया है, उसने बोल दिया मैं तुम्हें पैसे भेज दिया करूंगा, नहीं भेजा तो मिसेस बालफोर की तरह
दे आर नो। ऑफर उनका कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं था। ऑफर ऐसे नहीं की थी कि हाँ आप मुझे तुम कोर्ट में धकेल लेना और फिर मैं नहीं दे पाऊं तो मेरे से कंपनसेशन मांगना। नो, इट इज नॉट लाइक दिस। कोर्ट सेड कि आपने जब ऑफर किया है तो इंटेंशन मस्ट बी कि आपको लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है, आपको उसको इन्फोर्सेबल बनाना है। वर्बल ऑफर या फिड्यूशरी ऑफर्स आर नॉट हैविंग एनी इंटेंशन। आज एक फादर अपने सन को पॉकेट मनी कह रहा है तो लीगल रिलेशनशिप नहीं है उसमें, मैं दूंगा, इट इज लाइक विलफुली आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो दैट ऑफर इज ओरल ऑफर और वर्बल ऑफर और फिड्यूशरी ऑफर। तो उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि कल को नहीं दे पाए तो लीगैलिटी, फादर को एक टेंशन है मैंने बेटे को कह तो दिया है और मैं नहीं दे पाऊंगा तो ये मुझे कोर्ट में धकेल लेगा। इंटेंशन वॉज नॉट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, प्लीज अंडरस्टैंड। वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स में कभी भी इंटेंशन या मंशा ये नहीं रहती कि हमें लॉ के अकॉर्डिंग ऑफर करनी है और उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करना है। नो, वर्बल कॉन्ट्रैक्ट्स आर फ्री फ्रॉम द दिस इंटेंशन, दे डू नॉट हैव एनी इंटेंशन। ऑफर मस्ट बी वेरी वेरी डेफिनेट, वेरी ट्रू। ऑफर शुड नॉट बी वेग। अगर आपकी ऑफर वेग है तो वो मानी नहीं जाएगी, राइट? Vague offer is treated as cancelled offer. Vague offer is treated as cancelled offer. जहां पे क्लैरिटी नहीं है, जब क्लैरिटी नहीं है तो उसका क्या फायदा है? ऑफर मस्ट बी स्पेसिफिक। ये मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन का वर्जन क्या, उसका रैम है, आपको हर चीज का ऑफर जिसको आप कर रहे हो क्लैरिटी देनी पड़ेगी। क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए आप एक आज राइस मेकर वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको जो एक इनवॉइस आएगी, आपको जो डीड आएगी, कॉन्ट्रैक्ट डीड, उसमें मेंशन्ड होगा ये राइस इतने किलो इस वेराइटी के इस सीजन में इस पीरियड में इस प्राइस पे, एवरीथिंग इज स्पेसिफिक। तो कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट हैव इवन ए सिंगल ऑफ वेग टर्म। जहां पे क्लैरिटी नहीं हुई, जहां पे वो चीज डेफिनेट नहीं हुई, वहीं पे ऑफर इज कैंसल्ड ऑफर, ऑफर इज नॉट ट्रीटेड एज वैलिड ऑफर। प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज ए वेरी ग्रेट डिफरेंस बिटवीन ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर, इन्विटेशन टू सेल। ऑफर है विच वन पर्सन इज मेकिंग टू अनदर एंड गिव ए टाइम टू थिंक, सोच के बता देना। तो ऑफर इज any particular task he wants to perform. So any offer between two parties to do something or not to do something and willfully obtaining his consent, उसकी राय ले लेनी। इन्विटेशन टू ऑफर कि आई एम गोइंग टू मेक यू ऑफर, जस्ट थिंक मेरे को अभी आपको इनवाइट करना है किसी ऑफर के लिए, विल यू कम? तो अगर आपको कोई इनवाइट आता है कि जैसे आज हमारी दुकान के 10 years कंप्लीट हो गए हैं, वी आर इनवाइटिंग यू टू कम टू आवर स्टॉल, वी वुड हैव दीज वेरी एक्टिविटीज, वो ऑफर नहीं है, वो इनविटेशन टू ऑफर है। आप उनकी दुकान पे जाते हो, यू एंजॉय दोज एक्टिविटीज, यू बाय समथिंग, यू गेट द गिफ्ट हैम्पर। तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि आपके पास एक पैम्फलेट आया था, आपने कहा था उसको गिफ्ट हैम्पर आप देंगे ही देंगे, आपको इनवाइट किया था। Invitation to offer is not an offer and invitation to sale is not an offer. Invitation to sale means आपको इनवाइट किया जाता है कि आप ये वाली आइटम्स हमारे पास आके खरीद लें। नंबर ऑफ पैम्फलेट्स आर देयर जो कहते हैं कि ड्यू टू कोविड-19 आवर स्टॉक्स आर पाइल अप एंड वी वांट टू गिव यू फॉर द सेलिंग पर्पसेस। जो आपकी 2000 की शर्ट थी आज हमारे पास 500 की अवेलेबल है, दे आर इनवाइटिंग यू फॉर द सेल, दैट इज नॉट द ऑफर। Please understand. So there is a difference between offer, invitation to offer, invitation to sale. Offer must be communicated, very very true. अगर आपकी ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई है, उसको पता ही नहीं कि आपने ऑफर किया है, that will not be treated as valid offer. आपने एक टेलीग्राम भेजा, वो पर्सन का एड्रेस चेंज हो चुका है, आप मान रहे हो आपने ऑफर कर दिया है, वो पर्सन आपने जब कांटेक्ट किया उसको, उसने कहा मुझे तो आपकी कोई ऑफर नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि मेरा तो एड्रेस वो रहा ही नहीं है। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर विल नॉट बी ट्रीटेड एज वैलिड इफ इट इज नॉट कम्युनिकेटेड, नंबर वन, और इफ इट इज कम्युनिकेटेड रॉन्ग, एट रॉन्ग एड्रेस, बाय रॉन्ग मीन्स, बाय रॉन्ग मैसेज, व्हाटएवर, राइट? मेयर स्टेट, आपको जैसे कई बार कॉल आती है
कि आप ये, उन्होंने कॉल किया किसी और पर्सन को, आपका नंबर लग गया और उन्होंने, कंपनी ने आपको कहा कि हमारी कंपनी आपको ऑफर देना चाह रही है, तो रामदत्त के लिए ये स्पेसिफिक ऑफर हमने इंश्योर किया है। आप रामदत्त हो ही नहीं, यू कैन नॉट क्लेम दैट ऑफर। Offer must be communicated to the right person via the right message in a right way. If all these things are not right, offer is not valid. Mere statement of price is not an offer. Very very true. सिर्फ आपने ये पूछा कि ये इसका दाम क्या है और आपने कह दिया हाँ हाँ इसी दाम में होना चाहिए, तो वो ऑफर नहीं है। There is one case हार्वे which I would be concluding at the last. एक फर्स्ट टेलीग्राम जाता है, हार्वे ने फेसे को भेजा कि आई वांट बम्पर हॉल पेन बट लोएस्ट प्राइस पे मुझे बताइएगा। फेसे ने रिप्लाई किया लोएस्ट प्राइस इज £900। हार्वे ने रिप्लाई किया कि वी एग्रीड टू बाय बम्पर हॉल फॉर द सम ऑफ दिस आस्क्ड बाय यू, प्लीज सेंड अस योर टाइटल डीड इन ऑर्डर टू दैट वी गेट अर्ली पोजेशन। इतनी सी बात से ये ऑफर नहीं हुआ, राइट? क्योंकि फेसे कंपनी ने प्राइस बताया है, उन्होंने एग्री किया है। अब फेसे डीड करेगी कि 900 है, इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, इतनी क्वांटिटी पे ये रेट है, दैट विल बी कॉल्ड ऑफर। तो मेयर अगर आप प्राइस बता देते हो, सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ प्राइस से आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज एन ऑफर, दैट इज नॉट एन ऑफर। हार्वे वर्सेस फेसे का मतलब क्या है? फेसे कुछ बेच रहा है, हार्वे खरीदना चाह रहा है। हार्वे ने बोला कि मुझे एक पेन चाहिए, फेसे ने कहा कि उसका प्राइस 900 है, हार्वे ने कहा मैं एग्री करता हूं। फेसे अब अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा इस प्राइस को। प्राइस बता देने से ऑफर नहीं हुआ कि फेसे ने ऑफर ही कर दिया। फेसे कहेगा 900 है बट आपको 100 क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। तो जहां क्वांटिटी प्राइस हार्वे के पास पहुंचता है वो फेसे ने ऑफर किया है। फेसे का प्राइस बता देना इज नॉट एन ऑफर। यस बच्चे, इज इट क्लियर? Is it clear, Yes, bache? ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this was all about this class. Meanwhile, please try to log into IMCRP. Let me know if any problem is coming onto any test. Just attempt the test and inform me accordingly if any problem is there. If no problem, then it is fine. You just complete your test and attend the next class. Okay, bache? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. All the best. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.